اللہ ابن سوچ حزم ہے نے بھی لکھی دی. عثمان بھائی اس بندے نے اپنی براڑ تے بکواس ہی کیتی کہ جاں ساڈے بارے چ ساڈے مسلک دے بارے چ ہاں جی یار تے مینوں تے اسی مسلک دے بارے چ نہیں بولدا لیکن ان نے میری گلاں گل گلاں سنو بکواس کیتی سی. میری گل سنو اپنی براڑ تے بیٹھے سارے کوئی کر جو مرضی کر سکتے ہیں جدوں ٹاکرا ہوئے گا نا آمنے سامنے ادو پھڑاں گے. میں کئی باری تانوں گل کیتی ہے ہر ہن اسکانی سی کنی وہ کرتا رہا وا تے جنہ منہ لاواں گے نا اُنہ ہی اگلا پرموٹ ہوندا ہے. جدوں ہوئے گا نا ٹاکرا ایک باری اسکانی نوں میں تے فیضان بھائی نے پڑھیا سی نا. فیضان بھائی کی بنیا سی اودہ پھر آہو شفیع والی جی روایت ہے میرے تو پہیاں سن ہوتے میں مصروف ہونے لگا میرا. نہیں عثمان بھائی وہ حدیث تے براڑ جھوٹ لا بول رہے رہا اج کل. سی. چیکاں نکل رہی سی تھلے چیکاں لوکاں دیاں نکل رہے تھے ہسن دے نے. انہوں نے پتہ ہے بریلویاں نے پھڑیا ہے تے بریلوی جدوں پھڑ نہیں لے نا تے وچ چھڑ دے نے. عثمان بھائی اج کل براڑ لا رہا جڑا نہیں آیا جڑا اخیر آفیشل تے جڑا دوسرا جڑا امتیاز بھائی تے نال جڑا جے عمر بھی ہوندا بیٹھا انہاں نوں لون دو میں کہندیا لون دو. کچھ ہن جنہ تسی گل کرو گے اونی پروموشن ہوے گی. جدوں سامنے ہون ٹھیک گے نا رہن دو ادوں جی پھڑاں جی گے. ٹھیک ایویں اسی انہاں دے ٹائم ویسٹ کریے انہاں دیاں گلاں پھڑیے. ٹھیک ہے گل آئی ہے ساڈے کول دلیل آ گئی ہے اسی بھی سرچ کر لیں. جدوں کتے نیکسٹ ٹائم اور ریکارڈنگ سیو کر لو. جدوں نیکسٹ ٹائم پھڑو انہوں کہ ہاں بھائی جواب دے ادھر بھائی نہ تانوں نساوے یا نہ نسے تانوں تے زیادہ سے زیادہ میوٹ کرے گا تے براڑ تو لائے گا تے جی ساری دنیا تماشا دیکھ لے گی. بالکل صحیح بالکل صحیح انہاں عثمان بھائی سارے بالکل نوں صحیح ایک کہا واری ایک واری اسی سارے نوں مدھولے ہویا سی. ماشاء اللہ. نہیں فضان بھائی تھا نال رہا نا اوے پیر سکانی ہر بندے کو جیڑا کھاندا پھردا لتر ہے. ویکھو فیض بھائی آئے نے نا دس دے رہے ان دے بارے چ ہیں جی جی خیر مارک فیض بھائی فیض السلام بھائی خیر علیکم میرے مارک. پیارے بہن بھائی. وعلیکم بابر مہر السلام. بھائی مفتی صاحب جو ہے وعلیکم نا السلام. مفتی صاحب اظہر شاہ بھائی کی لائف پہ بیان دے رہے ہیں. اگر آپ نے ریکارڈ کرنا ہے بابر بھائی. اظہر شاہ نے براڈ لائی ہے. نہیں وہ لگاندے نہیں اظہر شاہ صاحب لگاندے جی نے براڈ. اظہر شاہ بھائی نے لگائی ہوئی ہے. مفتی صاحب ادھر ماشاءاللہ بیان دے رہے ہیں. اچھا فیض بھائی یہ جی وہی نا عثمان بھائی بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے نا اسکانی بتا رہے تھے کہ یہ جو یہ ترجمہ غلط کیا ہے آپ لوگوں نے. حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں. تو میں ابھی بہرحال جی آپ بتائیں. جی میں ابھی ترجمے کے اوپر آپ سے بات نہیں کروں گا کیونکہ آپ عالم تو نہیں ہیں نا. آپ تو غیر عالم ہیں جی بالکل تو صحیح. آپ کو وہ سمجھ نہیں آنی. ہاں جی حدیث کے الفاظ کچھ اور ہے ترجمہ کچھ اور ہے. یہ غلط ترجمہ کیا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے. غلط. اچھا جی آگے سنیں. آگے کہتے ہیں کہ اگر وہ نکلے اور میں تم میں نہ ہوں تو ہر شخص کو خود دلیل کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور اللہ میرے بعد ہر مسلمان کا خلیفہ ہے. اور اچھا وہ دجال جو ان میں جو جوان ہے بہت گنے گنگریالے بالوں والا ہے. اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہے گویا کہ میں اسے عبد العزیٰ بن قطن سے تشبیہ دوں گا. تم میں سے جو کوئی اسے پائے تو اس پر سورہ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے. وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ سے نکلنے والا ہے. اچھا یہاں تک ہم ابھی رہنے دیتے ہیں تو اس پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں. کیا جی خیال ہے؟ اچھا ابھی تک جی آپ جی کیا سمجھے ہیں کہ یہ دجال کیا ہے؟ دجال کوئی انسان ہوگا, کوئی جانور ہوگا, کوئی پتھر ہوگا؟ کیا آپ سمجھے ہیں حدیث سے؟ میرے خیال سے یہ جو دجال ہے نا یہ ایک نظام کا نام ہے. نہیں حدیث ایک کی بات نظام کر. ہوگا دجالی اوہو نہیں, نظام. اوہو نہیں آپ, میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ آپ کے نزدیک دجال کیا ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں حدیث کے اندر کیا ہے.
حدیث کے مطابق تو ایسے ہے جیسے کوئی یعنی کہ ایک یعنی کہ وجود ہے کوئی ایک شخصیت کے بارے انسان میں ہے کہ جانور ہے؟ یہ تو نہیں ابھی تک سمجھ آ رہی. بھائی حدیث کی میں انسان ہی دوبارہ شاید پڑھ ہوگا. دیتا ہوں. یعنی شاید نہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ وہ عبد العزا بن قطن کی طرح اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی، گنے اس کے بال ہوں گے. وہ تو انسان سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ ایک انسان جی ہوگا. تشبیہ انسان سے. جی تو حدیث کی روح سے یہ کوئی انسان ہوگا کہ جانور ہوگا؟ ابھی تک تو جو سمجھ آ رہا ہے وہ تو انسان ہی ہوگا. ٹھیک ہے. انسانوں کے اندر دو کیٹاگری ہیں، ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتا ہے عورت. انسان مرد ہوگا کہ عورت ہوگا؟ جی. مرد ہی ہوگا پھر. مرد. کیونکہ عبد العزا بن قطن مرد تھا نا، عورت تو نہیں تھا. جی 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 سمجھ نہیں آئی میرے بھائی کو؟ ہاں جی ہاں جی. میں حدیث سنا رہا ہوں بھائی، یہ آپ کو کوئی کہانی نہیں سنا رہا، اور آپ کی اپنی ہاں کتاب جی. سے پڑھ کے سنا رہا ہوں. اچھا تو پھر آگے یہ بھی کہا کہ جی جب کوئی دجال کو دیکھے، یعنی اس مرد کو، اور وہ ایک شخص ہوگا. اچھا ایک ہوگا کہ دو ہوں گے، یعنی 2 3 4 ہوں گے؟ ایک. ایک. ابھی تک تو حدیث میں تو حدیث میں ایک ایک ہی ہے نا. کا ہی ذکر ہے. ہاں حدیث میں ایک ہی ہے. شاباش، جی ٹھیک ہو. اچھا اب ذرا مائک میوٹ کریے گا، مائک ذرا میوٹ تھوڑا سا آسان کر دیں میرے لیے، کیونکہ وہ شور آتا ہے. صحیح ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرزا صاحب نے دجال کس کو کہا ہے. ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں اور کام آسان ہو جائے گا. مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 121 کے اوپر، کہتے ہیں ایسا ہی آیت اخرجت للناس میں بھی الناس کے لفظ سے دجال ہی مراد ہے. وہ کہتے ہیں ناس یعنی تمام لوگ دجال ہیں. اب آپ ذرا مجھے بتائیے گا، مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا کہ سچ بولا؟ جی میرے بھائی. جی بھائی جب تک یہ میں سارا نہیں پڑھوں گا کہ جہاں پہ انہوں نے لکھا ہے تو میں تو نہیں نا ایسے بتا سکتا. یہ حوالہ سارا نوٹ کر جائزہ لیا آپ لینا نے؟ پڑے گا، تشریح کرنی پڑے گی. حوالہ نوٹ کر لیے؟ نہیں یہ والا نہیں کیا، یہ والا کریں بتائیں. نوٹ، کریں نوٹ. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 121. جی روحانی جلد 17 صفحہ 121 صفحہ 121. جی. جی یہاں پہ ناس کہہ رہے ہیں. ناس دجال کون ہے؟ وہ ناس ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی؟ جی ٹھیک ہے میرے بھائی، کوئی ہاں نہ کریں تاکہ میں آگے چلوں. ہاں جی ہاں جی ٹھیک. جی جی میں بول رہا ہوں. جی دجال سے مراد کیا ہے؟ دجال سے مراد کیا ہے؟ انسان. ہیلو، انسان جی نہیں، جی ناس. انسان. آواز آ رہی. نہیں مرزا ناس. صاحب نہیں، تمام انسان. ایک انسان نہیں، تمام انسان. دجال سے مراد کیا ہے؟ تمام انسان، کائنات دنیا کے جتنے انسان ہیں، چاہے وہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ہجڑے ہیں، لولا ہے، لنگڑا ہے، کانا ہے، پینگا ہے، ٹھینگا ہے، کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، تمام انسان کیا ہے؟ وہ دجال ہے. ایک بات سمجھ آئی کہ نہیں میرے بھائی کو؟ ٹھیک ہے. ہیلو، جی ہاں جی ہاں جی. آگے بڑھیے. روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 296 ہے. مرزا صاحب کہتے ہیں حدیثوں پر غور ٹھیک ہے. کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل دجال شیطان کا نام ہے. دجال کس کا نام ہے؟ ٹھیک ہے. شیطان کا. بتائیں تو، رپیٹ کریں، دجال کس کا نام ہے؟ جی جی شیطان کا نام. اور پہلے کیا کہا تھا انہوں نے؟ دجال کون ہے؟ الناس. ناس. نوٹ کرتے رہیے گا میرے بھائی، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ یہ حوالہ نوٹ کر جی. لیا آپ نے؟ کیا حوالہ ہے؟ دوسرا حوالہ بتائیں جلد مجھے. 14 ایک ہے صفحہ روحانی خزائن 296. جلد 17 صفحہ نمبر 121.
پہلے والا جو ہاں اگلا لکھا ہوا ہے، جلد 14 صفحہ 296 شیطان والا 296 جلد 14 صفحہ 296 ٹھیک ہو گیا آگے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ روحانی خزین جلد 14 صفحہ 416 لکھ لیں جی صفحہ 416 جلد 14 جی سیم جلد 14. جی کہتے ہیں دجال در جی حقیقت ایک گروہ مفسدین کا ہے، یعنی فساد ٹھیک ہے. کرنے والے، یعنی مفسدین کیا ہے؟ سارے انسان نہیں، ان کے اندر سے ایک مخصوص ایک گروہ ہے فساد کرنے والے لوگوں کا، تو اس کو دجال کہتے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، ہاں صحیح. جی جی یہ کتنے والے ہو گئے ہیں ٹوٹل؟ 3 ہو گئے ہیں. 3 ہو گئے ہیں. ایک جگہ کیا تھا؟ ناس. دوسری جگہ کیا ہے؟ شیطان. تیسری جگہ کیا ہے؟ گروہ مفسدین. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بالکل ٹھیک. اگلا حوالہ نوٹ کریں، روحانی خزین جلد 22 صفحہ 45 صفحہ 45. جی یہاں پہ کہتے ہیں اس شیطان کا دوسرا نام عیسائیت کا بھوت ہے، اور اسی بھوت کو دجال کہتے ہیں. عیسائیت کا بھوت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ہوں تو ٹوٹل ٹھیک ہے. کتنے دجال ہو گئے ہیں؟ 4 دجال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یاد رکھتے رہیے گا. آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. جی جی میں نوٹ کر رہا ہوں. جی روحانی خزین جلد 22 صفحہ 456 ہے. جلد 22 456. کہتے جی ہیں وہ دجال پادریوں کا فرقہ ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹوٹل دجال کتنے ہو گئے ہیں؟ یہ 5 5 اقسام بتائیے. 5 دجال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 174 جی کہتے ہیں کہ مگر ہمارے نزدیک ممکن ہے کہ دجال سے مراد با اقبال قومیں ہوں، با اقبال قومیں ہوں، اور گدھا ان کا با اقبال ریل، کیا چیز ہے؟ یہی ریل گاڑی ہو. تو ہاں جی با اقبال قومیں یعنی بڑی بڑی قومیں. اور خود مرزا صاحب ٹھیک ہے. ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہماری قوم مغل ہے اور مغل اقبال مند قوم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو بھی دجال کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے میرے بھائی، تو ٹوٹل کتنے دجال ہو گئے ہیں؟ 6 دجال ہو گئے ہیں. جی یاد رکھیے گا، بھول نہ جائیے گا، میں اصل میں بھول جاتا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. جی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 362 362 جی جی جلد 3. جی 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 کہتے ہیں بتائیں. لغت میں دجال جھوٹوں کے گروہ کو کہتے ہیں. صحیح تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ ٹھیک ہے. یہ 7 اقسام ہو گئی ہیں. 7 ہو گئے ہیں. میں اور بھی آپ کو لکھوا سکتا ہوں، بہرحال ان 7 کے اوپر ہی اکتفا کر لیتے ہیں. اب واپس آ جاتے ہیں حدیث جی کے اوپر. حدیث میں کیا تھا میرے بھائی؟ جی ایک شخص واحد، ایسے ہی ہے نا؟ جی ایک شخص واحد ہی ہے نا؟ ہاں جی لیکن جی مرزا جی صاحب تو کبھی کہتے ہیں ناس کو دجال کہتے ہیں، شیطان کو دجال کہتے ہیں، گروہ مفسدین کو دجال کہتے ہیں، عیسائیت کے بھوت کو دجال کہتے ہیں، پادریوں کے فرقے کو دجال کہتے ہیں، اقبال مند قوموں کو دجال کہتے ہیں، جھوٹوں کے گروہ کو دجال کہتے ہیں. اب مجھے بتائیے جھوٹ کے، یہ مائک میوٹ کریے گا بھائی ایس کے صاحب. اب مجھے بتائیے یہ 7 دجال الگ ہے، حدیث والا دجال الگ ہے، بات کس کی آپ نے ماننی ہے؟
हदीस वाले दज्जाल की माननी है या मिर्जा साहब वाले दज्जालों की माननी है? जी अगर इसकी ये तशरीह करें कि ये सारी इकसाम किसी एक ग्रोह में पाई जाती हों तो उसको हम दजाल कहें, ऐसे नहीं है? नहीं, ऐसे नहीं है, ये तो तजाद पाया जा रहा है ना, मुख्तलिफ। ये देखिए तर्जमा कोई एक नहीं है। मिर्जा साहब अगर कहते कि दज्जाल एक शख्स होगा तो फिर ठीक है, वो बात हदीस वाली करेंगे। जब वो कह रहे हैं कि दज्जाल शैतान को कहते हैं, नास को कहते हैं, ग्रोह मुफसदीन को कहते हैं, ईसाइयत के भूत को कहते हैं, पादरियों के फिरके को कहते हैं, इकबाल मंद कौमों को कहते हैं, झूठों के ग्रोह को कहते हैं, हदीस में ऐसा है ही नहीं। जी मेरे भाई, इस तजाद को आप क्या कहेंगे? ये तो फिर मुझे सर्च करनी पड़ेगी ना मुझे, मैं पूछ के बता सकता हूँ, ऐसे तो नहीं। बाकी मेरे मुताबिक ये जो अमेरिका हो गया, ये तरक्की याफ्ता कौमें जिन्होंने ये जहाज़ बनाया एक आंख वाला, और ये ट्रेन जो गधा है दजाल की सवारी, तो ये चीज़ें दजाल हैं। अच्छा चले एक दजाल काम का कर गधा, लेते हैं, और जो एक काम जिन्होंने बनाया है वो दजाल। एक काम कर लेते हैं, क्या ख्याल है? जी आपके लिए भी आसानी हो जाए, मेरे लिए भी आसानी हो जाए, और इतने दोस्त बैठ के सुन रहे हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी समझने में, ठीक है ना? अभी तो आपने तहकीक करनी है, रिसर्च करनी है, तो लेकिन तहकीक और रिसर्च से पहले ही आप एक कायदा कुलिया बना दें कि हदीस वाले दज्जाल के अलावा कोई और तर्जुमा मुराद लेना आया वो बंदा झूठा और कज़ाब होगा कि नहीं होगा? नहीं, अगर तशरीह कई हदीसें ऐसे भी हैं जिनका यानी कि तशरीह जिनकी लाजमी है अगर उनका मफहूम समझने के लिए, तो भाई ऐसे भी तो हो सकता है तशरीह ना। की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब माना समझ ना आ रहा हो। अभी मैंने हदीस जब आपको सुनाई थी तो आपको तर्जुमा समझ आ गया था, आपने कहा इससे मुराद शख्स वाहिद है, तो तशरीह की तो जरूरत ही नहीं है। तशरीह की जरूरत उस वक्त पेश आती है जब उलझाओ हो, मजहूल किस्म की गुफ्तगू हो, जिसका तर्जुमा समझ ही ना आ रहा हो। जब तर्जुमा समझ आ रहा है तो उसकी तशरीह की जरूरत ही नहीं है। आपसे मैंने पहले इसीलिए पूछ लिया था कि इससे मुराद आप क्या समझे, आपने खुद फरमाया कि इससे मुराद एक शख्स वाहिद है। अच्छा, तो इसकी सवारी के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो बात- सवारी ओहो, इतनी नहीं, बड़ी नहीं, होगी उसकी? ना 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 ना, ये बात उलझ जानी है, बड़ी दूर निकल जानी है, ये बिल्कुल अपोजिट बात है। मैं दिन की बात कर रहा हूँ, आप रात की बात कर रहे हैं। मैं सफेद की बात कर रहा हूँ, आप स्याह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मुखालफ सम्मत पे आप चल रहे हैं, ऐसे नहीं। वो ना बात उलझ जाएगी और बहुत सुनने देखने वाले भी लानत डालेंगे हम दोनों के ऊपर ही कि ये क्या कर रहे हैं, खलते मबस कर रहे हैं। तो ऐसा है कि लानत से बचने का बेहतरीन तरीका यह कि एक मौजू पर हम रहें। क्या ख्याल है? जी हाँ, तो अभी तो हदीस मुस्लिम शरीफ की बड़ी लंबी चौड़ी है, मैंने तो रोक दिया था आपको। अभी तो आगे बहुत कुछ है, पहले ये थोड़ा सा किसी किनारे पे लगा ले तो आगे बढ़े। अभी आप मुझे बता दें कि इसका करना क्या, क्योंकि आगे भी आप यही कहेंगे कि मैं रिसर्च करूंगा, तहकीक करूंगा। क्योंकि देखें जब बात आप ये तो कहना है। सुने, एक मिनट सुन लें, बात आपने शुरू की है ना, हदीस तो आपने पेश की थी कि हदीस के अंदर आया है कि वो 2 जर्द चादरें पहने हुए होगा। तो मामला यह है हाँ कि जी। जब आपकी तहकीक है इस हदीस के ऊपर तो इसी वजह से तो आपने पेश की है। अगर आपकी तहकीक नहीं, ना ये मैंने होती, सारी नहीं पढ़ी। सारी तो आपकी मिर्जा साहब ने भी नहीं सारी- कभी पढ़ी, सारी हदीस तो मिर्जा साहब ने भी नहीं पढ़ी, ना ही कभी मिर्जा साहब ने पेश की है सारी हदीस। सारी हदीस तो आज तक आपके किसी कादियानी खलीफे ने भी पेश नहीं की। सारी हदीस तो जनाब पॉकेट बुक के अंदर भी नहीं है। ये सिर्फ एक टोटा पकड़ा हुआ है बीच में से कि 2 जर्द चादरें पहने हुए होगा और नबी को ये 4 दफा ईसा को नबीउल्लाह कहा गया, बस ये चीज पकड़ी हुई है। बस पूरी हदीस तो आज तक किसी दुनिया के किसी मुरब्बी ने पेश नहीं की। तो अभी तो फिर खोता तो फंस गया एक जगह पर ही, तो अब आगे मैं क्या बढ़ूं, अगर बढ़ूं कि ना बढ़ूं, क्या फरमाते हैं आप?
नहीं, हदीस तो काफी लंबी है, इसमें कई यानी कि मौजू हैं, तो बड़े मौजू हैं, मैं कहता हूँ हजारों आप मौजूआत ये है, एक मौजू तो नहीं है, हजारों मौजूआत है इसके अंदर। यही तो हम लोग आपको कहते हैं कि हदीसों को पूरा पेश किया करें, अधूरी हदीस नहीं। हदीस करनी है पेश तो फिर पूरी करो। आगे आगे मैं चलूं? हाँ जी, हाँ जी, आप इसकी तशरीह बताएं। जी जी, नहीं चले तशरीह नहीं, मैं ओहो तशरीह नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ आप लोगों की किताब जो मुस्लिम शरीफ आप लोगों ने छापी है वो पढ़ रहा हूँ, मैं तो इशारा नहीं कर रहा। जी जी, आप पढ़ें। जी आप पढ़ें। अच्छा जी, आगे लिखा है कि वो शाम और इराक के दरमियान एक राह से निकलने वाला है, दाएं जानब भी फसाद बर्पा करेगा और बाएं जानब भी। बस ए अल्लाह के बंदो तुम साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जमीन में कितना अरसा रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। अब मुझे बताइए, वो एक शख्स की बात हो रही है और 40 दिन उसने रुकना था, तो क्या नास अगर मुराद ले ली जाए तो वो क्या 40 दिन रुकी है जमीन के ऊपर? क्या शैतान मुराद ले लिया जाए तो क्या वो जमीन के ऊपर 40 दिन रुका है? क्या ग्रोह मुफसिदीन ले लिया जाए तो क्या ग्रोह मुफसिदीन 40 दिन के लिए रुका है? बताइए ना। 40 का होगा जी हेलो, क़यामत का दिन 40 साल का। क़यामत का तशरीह मैंने कहा जैसे कि क़यामत का दिन कहते हैं कि एक दिन 40 साल का होगा, ये किसने कहा है? तो वैसी ना तशरीह की ये हो किसने ऐसे। नहीं, ये किसने कहा है कि क़यामत का दिन 40 साल का होगा? ये वो सरकारी मुसलमान था वो मिर्जा जेलमी। हाँ ये उसकी वीडियो में मैंने सुना था, तो वो कह रहे थे कि 40 साल का एक दिन होगा। नहीं, झूठ 40,000 साल का शायद ऐसे 40 साल का। झूठ नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सर मैंने सुना है, मैं कह रहा हूँ उसकी वीडियो- रिकॉर्डिंग हो रही, नहीं झूठ मुझे बोलने की क्या मैं जरूरत कह रहा है? हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ। मैं मिर्जा सर जूनियर जेलमी, अभी तक सुन तो लेना यार, बीच में टोकेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है ना। ही आपकी बात लोगों को समझ आनी है, ना ही मेरी बात समझ आनी है। बात यह है कि झूठ बोल रहे, रिकॉर्डिंग हो रही है। मैं अगरचे मिर्जा जूनियर जेलमी का हमायती नहीं हूँ, वो कज़्ज़ाब है मिर्जे कादियानी की तरह, जी बताएं। बहुत बड़ा कज़्ज़ाब है, लेकिन आप ये झूठ मंसूब कर रहे हैं उसकी तरह। उसने नहीं कहा। ये गो और ये मैदान अगर ये कबूल करें, आप वादा करें यहाँ पे, चले मैं क्या ये आप भी आपको किसी दिन निकाल के दिखा दूंगा। नहीं, आप चलें चलें इसी के ऊपर चैलेंज कर लेते हैं। आप वादा करें जी, आज डेट है 25 अक्टूबर 2024, रात के 7:30 बजे हैं, डे टाइम, कब लेके आएंगे वो वीडियो? मैं जब भी मिल गई मैं सर्च करूंगा इस बारे में। टिकटॉक पे मतलब देखते 1 होते हैं ना साल, 2 ऐसे। साल, तो 3 वीडियोस साल, मैंने देखा 5 था। साल, 10 साल, कोई टाइम तो दें कम से कम। कितना टाइम चाहिए? 40 साल। दें टाइम जी, 40 साल 40 साल चाहिए। चलो जी, अच्छा। मैं लो जी 40 साल ठीक हो गया, नहीं, मैं लिख नहीं। लेता हूँ। मैं उनकी बात का बता रहा था। नहीं आपको मैं तकरीबन मैं काम पे भी जाता हूँ, इंशाल्लाह मैं संडे तक मैं आपको बताऊंगा वो वीडियो का। नहीं, कहाँ पे संडे उनका? कौन सा संडे? क़यामत के करीब जो होगा? निकाल दूंगा आपको। नहीं, कौन सा संडे? तारीख बताइए। नहीं ये जो आप दो दिन बाद आ रहा है संडे। मैं कोशिश 2 दिन करूंगा। बाद यानी मैं पक्का 27 नहीं तारीख कहता कि होगी। इस पे मैं 27 मिल गई तो ये। जी जी 27 तारीख हाँ को, जी। 27 अक्टूबर 2024 को बताएंगे आप? हाँ जी मैं कोशिश करूंगा। नहीं, करूंगा। कोशिश ओह नहीं करना, ऐसे नहीं करते, कोशिश नहीं करते। देखिए अपनी बात पर पहरा दिया करते हैं। ऐसा बंदा कच्चा होता है, कच्चा हो जाता है। आप ऐसी खोखली बातें ना करें, क्योंकि उन्होंने भी हवाला नहीं था बताया, इसीलिए मैं हवाला तो नहीं ना निकाल सकता। ठीक हो गया, हवाला तो नहीं था ना निकाल सकता, लेकिन मैं वीडियो वो सर्च करूंगा। अगर वीडियो मेरे सामने आ जाती तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ आप 1 हफ्ता और ले लें, लेकिन एक कन्फर्म हमें बताएं कि इतनी डेट तक आप लेके आ जाएंगे। आप जरूरी नहीं 27 अक्टूबर ही, आप 27 नवंबर कह दें, कोई मसला नहीं। हेलो
चले मैं आपको दिखा दूंगा, बात को जरा आगे बताएं चलाएं तो आप। सही ना। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा नहीं लगता। देखिए कन्फर्म बंदे को बात करनी चाहिए। आपके मिर्जा साहब ने भी चलो एक हफ्ता कर लो, एक हफ्ता कर लें भाई, एक हफ्ता कर लें। अच्छा 27 के बाद कौन सी डेट बताइए। आज 25 है तो आप कर लें तकरीबन 31 कर लें इस महीने में। 31 अक्टूबर ठीक हो गया जी, ऐलान हो गया जी। और आप पेश करेंगे किसको पेश करेंगे? हाँ जी, वो जो मिर्जा जो है मोहम्मद अली मिर्जा, मेरा उन्होंने व्हाट्सएप नंबर कहा नोट था कि करें। क़यामत का जो मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट करें। एक मिनट जी बताएं। 0324 0324 744 744 8814। 8814। लो जी मैं ना ठीक है, वेट नाम करूंगा। क्या है आपका? मुबशर शाह। मुबशर शाह जी। मुबशर शाह। ठीक हो गया ना जी। ये देखे ना, ये इंसानों वाली कोई बात हुई है। जी ठीक है ना, ये तरीकाकार भी यही होता है कि हर चीज। अनवर साहब आप एक दफा ना नंबर रीड कर दें ताकि आपको ये ना बोलें कि नंबर गलत था। जी साहब 0324 जी कोई बंदा नीचे लिख दे, कोई बंदा नीचे लिख दे। 0324 नहीं 744 मैंने नोट कर लिया सर। 0324 744 8814। बिल्कुल ठीक है, वेल डन हो गया। अच्छा जी ये तो चलो आप वो मिर्जा जूनियर जेलमी का क्लिप लेके आएंगे तो फिर बाद में देखेंगे, हदीस को आगे चलाते हैं। जी ठीक जी है जी। ठीक है। अच्छा जी आगे ओके। कहते हैं जी हमने अर्ज किया या रसूलल्लाह वो जमीन में कितना अर्सा रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 दिन। कोई दिन माइक म्यूट करिएगा, ठीक है। शोर आ रहा है, शोर आ रहा है। आपने फरमाया 40 दिन। कोई दिन एक साल के बराबर होगा, और कोई दिन एक माह के बराबर, और कोई दिन एक हफ्ता के बराबर। इसके बाकी सारे दिन तुम्हारे दिनों की तरह होंगे। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो दिन जो एक साल के तरह होगा, क्या इसमें एक दिन की नमाजें हमारे लिए काफी होंगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इसके लिए अंदाजा कर लेना। हमने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन में इसकी तेज रफ्तारी कैसी होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बारिश के तरह जिसके पीछे हवा चल रही होगी। फिर वो एक कौम के पास आएगा और इन्हें पुकारेगा तो वो उसकी बात मान लेंगे। इस पर वो बादलों को हुक्म देगा तो वो खूब बारिश बरसाएंगे, और जमीन को हुक्म देगा तो वो उगाएगी। और शाम को इनके मवेशी आएंगे तो इनकी कोखें पहले से बहुत ऊंची होंगी, उनके थन भरे हुए होंगे और उनकी कोखें भरी हुई होंगी। फिर वो एक और कौम को बुलाएगा और उसकी बात को रद्द कर देंगे, और वो उनके पास से चला जाएगा तो वो कहत में मुब्तला हो जाएंगे, और इनके हाथों में इनके मालों में से कुछ ना रहेगा। और वो दज्जाल वीराने से गुजरेगा तो उसे कहेगा कि अपने खजाने निकाल दे, तो इस वीराने के खजाने इस तरह इसके पीछे चल पड़ेंगे जैसे शहद की मक्खियां। फिर वो एक भरपूर जवान आदमी को बुलाएगा और उसे तलवार से मारेगा और उसके 2 टुकड़े कर देगा। ये याद रखिएगा कि मिर्जा कादियानी ने जो दज्जाल के बारे में कहा है, क्या नास ने ये काम किया? किसी एक नौजवान को बुला के तलवार से उसके 2 टुकड़े कर दिए हों? क्या शैतान ने ये काम किया? क्या ग्रोह मुफसिदीन ने ये काम किया? क्या ईसाइयत के भूत ने ये काम किया? क्या ये पादरियों के फिरके ने ये काम किया? क्या इकबालमंद कौमों ने ये काम किया? क्या झूठों के ग्रोह ने ये काम किया? नास ने किया ना। कौन से शख्स को बुलाया था तो 2 टुकड़े किए? नास ने किया ना। क्या किया बताएं, कौन से? नहीं आजकल देखिए जैसे जदीद दौर आ गया है यानी कि मेडिकल का, तो एक इंसान जिंदा को वो बेहोश करते हैं और उसका दिल निकाल के बाहर रख देते हैं, पेट चाक करके, तो फिर दोबारा उसको सी देते हैं और जिंदा कर देते हैं। नहीं 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 ऐसे नहीं। ये तो इस दौर की तरफ जा रहा है ना। ओ ऐसे नहीं
मिर्जा गुलाम कादियानी कहता है जो हदीस कसम के साथ होती है उसकी तवील नहीं होती, उसको उसके लफ्जों के ऊपर रखा जाता है। और ये हदीस कसम के साथ है, कसम वाली हदीस है। अल्लाह के नबी कसम उठा के कह रहे हैं, और मिर्जा कादियानी ने ये कायदा बनाया हुआ है कि जो कसम वाली हदीस होती है उसकी तवील होती ही नहीं, उसको अपने लफ्जों के ऊपर रखा जाता है। अब आप तवील कर रहे हैं, तवील नहीं होगी यहां पर। जो इसके अल्फाज है उसको इसके लफ्जों के ऊपर रखा जाएगा। मेरे भाई बात समझ आई है कि नहीं मेरे भाई को? जी 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 ठीक है। हाँ, इसके लफ्जों के ऊपर रखा जाएगा, इसकी तवील नहीं करेंगे, कोई भी तवील नहीं करनी। जो जैसी हदीस है कसम वाली वैसी रहेगी, बिल्कुल वैसी। आगे सुनिए, कहते हैं फिर वो एक भरपूर जवान आदमी को बुलाएगा और उसे तलवार से मारेगा और उसके 2 टुकड़े कर देगा निशाने पर मारने की तरह। फिर उसे पुकारेगा तो वो रोशन चेहरे के साथ हंसता हुआ आएगा। इतने में अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा। किसको मबूस करेगा? हेलो, हजरत ईसा, हजरत ईसा। नहीं, नाम क्या लिखा है? मसीह इब्ने मरियम। क्या नाम है? ठीक है। क्या नाम लिखा है बताइए मसीह दोबारा। इब्ने मरियम। सुम्मा याती ईसा मसीह इब्ने इब्ने मरियम। मरियम। ठीक है, ईसा इब्ने मरियम। ठीक है ठीक है, ठीक है। अच्छा। अच्छा, मसीह इब्ने मरियम जो है मिर्जा गुलाम कादियानी, क्या मसीह इब्ने मरियम है? बताइएगा। नहीं मिर्जा नहीं, कादियानी की माँ का नाम क्या है? मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे ज़हन से निकल गया है इस वक्त। माइक सिटी। ये काफी देर। माइक सिटी। जी माइक सिटी। नहीं 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 सर, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, चिराग बीबी वैसे नाम था, लेकिन उनका तखल्लुस था माइक सिटी। नहीं नहीं, गलत, ये गलत बात आपकी है सर। किताबों में लिखा हुआ है अगर यार। आप ऐसे, ओ भाई, आपकी किताबों कौन सी में किताब में लिखा हुआ है? जी, मैं कौन अभी सी किताब में लिखा हुआ है? आप अभी निकाल बताएं। दूं। हाँ मैं जी। अभी निकाल दूं। बताएं। चले, हाँ बिल्कुल जी हाँ जी, निकालने बताएं मुझे। बिल्कुल हवाला हवाला बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मुझे सर्च करना पड़ेगा। उतनी देर ये मैंने सर्चिंग पे लगा दिया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा हवाले हैं, जी। तो वो सर्च करके तो वो अभी मुझे बता देगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, मुझे बताइए, क्या मिर्जा गुलाम कादियानी मसीह इब्ने मरियम है? नहीं, इब्ने मरियम तो नहीं है। तो फिर क्या इस हदीस का मिस्ताक मिर्जा कादियानी बना कि ना बना? मैं कहता हूं क्या? इस हदीस का मिस्ताक क्या? मिर्जा कादियानी है कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। जी मैं जी। कह रहा हूं इस हदीस का मिस्दाक, यानी हदीस के अंदर जिस ईसा इब्ने मरियम की बात हो रही है, इससे मुराद मिर्जा कादियानी है या कोई और है? हजरत मिर्जा साहब। मिर्जा साहब है? हाँ जी। वो कैसे? ना तो मिर्जा गुलाम कादियानी ईसा है, ना उसकी माँ का नाम मरियम है, तो मसीह इब्ने मरियम कैसे बन गया? ना ही इसकी वो तशरीह करनी पड़ेगी ना। क्या तशरीह? मैं कह रहा हूँ हदीस जो कसम के साथ होती है, खुद मिर्जा कादियानी कहता है कि कसम वाली हदीस की तशरीह नहीं होती, उसकी कोई तवील होनी ही नहीं है। आप तशरीह कर रहे हैं। अब आपकी बात मानी जाए कि मिर्जा कादियानी की मानी जाए? बताएं। अब आप दोनों में तजाद हो गए। मिर्जा कादियानी कुछ और कह रहा है, एक कादियानी कुछ और कह रहा है। क्या किसकी बात माने हम? तो दरमियान में फंस गए। हजरत मसीह मौला इस्लाम की बात माने। हाँ, तो मैं तो मान रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हदीस, उसने कहा था कि जो कसम वाली हदीस होती है उसकी तवील नहीं होती, तो मैं तो मान रहा हूँ उसकी बात, लेकिन आप नहीं मान रहे।
जी अच्छा चलें इस हदीस को थोड़ा आगे चलाएं। नहीं अग्गा तोड़ पिछा चोड़ तो नहीं ना करी जाना तो किसी गल ते टिकदे ही नहीं पे कम से कम किसी एक बात की कोई नहीं चीज नहीं किनारे पे ये तो बात लगाएं। अब इधर अड़ गई है ना बात। अब आप कह रहे हैं कि ये भाई पहले बताओ कि ये किस मेरे बारे में भाई बात हो रही है, मेरे तो मैं भाई कैसे हर बता चीज सकता हूँ? मेरे भाई हर जगह ही अटकी है ना। पहले दज्जाल की शख्सियत के ऊपर बात अटक गई, आपने कहा मैं बाद में बताऊंगा। फिर जनाब भाई सुने इधर ना, नीचे मूसा भाई आए हैं, फिर इनको वो जरा ऊपर 40 ले सकते हैं? फिर वो 40 दिन के ऊपर अटक गई है बात, आपने कहा मैं बाद में जी बताऊंगा। जी मैं वो फिर अब क्लियर कर ईसा दूंगा। मसीह इब्ने मरियम के ऊपर बात अटक गई, तो ये मतलब ये अटक नहीं है, बार बार अटक नहीं है। सर आप ऐसा करें, बात करें मूसा साहब को बाद में ले लेंगे, आप बात मुकम्मल कर लें। शाह जी आप थोड़ी देर के लिए बस चुप हो जाएं, कोई बीच में बोले नहीं, थोड़ी देर चुप रहें सब। जी जनाब अनवर साहब, जी अनवर हाँ साहब जी। मैं कह रहा हूं कि 3 जगह बात हमारी अटकी है। वो चीज मजीद मैंने नोट कर ली है ना भाई, नोट भाई कर ली मैंने। मैं इस बारे फिर यानी कि अच्छा अब देखिए जी होना तो ये चाहिए था कि आप भी फिर हमसे कोई दलील ना मांगे। आप देखें आप जो दलील मांग रहे हैं मैं नहीं फौरी यार। तौर पे निकाल के देख, एक मिनट सुने ना यार, बात यह है कि असूल तो फिर दोनों के लिए बराबर होना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि भाई आप हमसे दलील तलब करें तो हम तो फौरी तौर पे निकाल के दिखाएं, लेकिन हम जब दलील तलब करें आप कहें मैं रिसर्च करके बताऊंगा। कायदा कुलिया तो फिर ऐसा बनाएं कि जो जी दोनों आप के तो लिए मुफ्ती हैं, आपके पास तो भाई ये होता है, आपकी भाई तो भाई जिम्मेदारी है ना। नहीं भाई नहीं, आप देखें रुके, माइक म्यूट करें जरा, माइक म्यूट करें। हम आप लोगों के नजदीक कुछ भी नहीं जी है, माइक तो म्यूट करें। हम आप लोगों के नजदीक बंदर सूअर खंजीर और दुनिया की बदतरीन मखलूक है। आप लोगों के नजदीक हम काफिर हैं, आप लोगों के नजदीक हम कुछ भी नहीं है, तो हमारी तो बात की कोई अहमियत नहीं ना। आप हमें क्यों मतलब कह रहे हैं आप मुफ्ती हैं? भाई हम तो आप लोगों के नजदीक आपकी किताबें पढ़ी हैं, अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं हवाले दिखा दूंगा। अभी ये गौर ये मैदान मैंने पटारी खोली हुई है, मेरे सामने सब कुछ मौजूद है। तो बात यह है कि आप हमें ना बीच में डालें। आप लोगों के नजदीक हम कुछ भी नहीं है, आप अपनी बात करें, क्योंकि आपके मिर्जा साहब ने आप लोगों के बारे में कहा था कि मेरे फिरका के लोग इल्म के अंदर वो कमाल हासिल करेंगे कि वो मुखालिफिन का दलाइल के जरिए मुंह बंद कर देंगे। आपने हमारा दलाइल के जरिए मुंह बंद करना है, लेकिन अभी तक तो आपने कोई दलील नहीं दी। जी जी ये तो बात है नहीं अभी तक तो सर, आपने मैं बता रहा हूँ आपको, सारी मैं दलीलें देते हैं। आप मूसा भाई को ऊपर लें जरा, ये आपको दलील देंगे। और नहीं मूसा साहब से भी बाद में बात करते हैं, पहले आपसे पहले कर लेंगे। जब आप थक जाएंगे, आपको सांस चढ़ जाएगी ना मेरे भाई, तो फिर उनको ताजा दम वो हो के आएंगे तो उनको ले लेंगे। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, सांस ये बोलने में किसको सांस चढ़ती है, बोलने में नहीं, तो कोई मसला नहीं। कभी कभी भाग दौड़ से आप भी ये मूसा भाई को लें, ये फिर आपको बताते हैं। कभी भाग दौड़ से भी सांस चढ़ जाती है ना, ज्यादा भागने से तो वो सांस चढ़ जाती है, कभी सांस फूल भी जाती है। नहीं नहीं भागना कहाँ पे है। अच्छा अच्छा चले कोई बात। अच्छा आगे हदीस चलाऊं? जी अच्छा हाँ जी जी, हाँ इतने में माइक म्यूट कर लिया करें क्योंकि शोर आ रहा है आपकी तरफ। इतने में अल्लाह मसीह इब्ने मरियम को मबूस करेगा और वो सफेद मीनार के पास सफेद मीनार के पास दमिश्क की मशरकी जानब 2 जर्द चादरों में, ये वो बात अब आई है, 2 जर्द चादरों में 2 फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे हुए उतरेगा। जब वो अपना सर झुकाएगा तो सर से पानी के कतरे टपकेंगे, और जब सर उठाएगा तो मोती की तरह बूंदें टपकेंगी। यहां तक अभी हदीस को स्टॉप कर देते हैं। अब मुझे बताइए मिर्जा गुलाम कादियानी कौन से सफेद मीनारे के करीब दमिश्क के मशरकी मीनारा के करीब 2 जर्द चादरें पहने हुए 2 फरिश्तों के बाजुओं पर अपने हाथ रखे हुए उतरे और उसके सर से पानी के कतरे टपक रहे थे। अब बताइए, माइक ओपन करें।
जी मेरे भाई चलेगी। माइक सिटी वाला हवाला ले लें, हाँ एक जी किताब का माइक जी सिटी जी वाला हवाला आ गया है, पहले वो ले लें तो फिर आप बात कर लीजिए। खुतबाते महमूद सफा 253। 1 मिनट। खुतबाते महमूद महमूद जी सफा 253। सफ़ा 253 चलें जी। क्या लिखा हुआ है उस पे? माइक सिटी वाला जो मैंने कहा है, मिर्जा कादियानी की जो माँ थी ना, चिराग बीबी वैसे हाँ नाम जी, था, लेकिन लिखा उसके लिखा क्या हुआ है लिखा क्या हुआ है उसके ऊपर गांव बताएं। वाले लोग अम्मा जान को माइक सिटी कहते थे। अच्छा जी अच्छा, चलें, ये मैं देख चले लूंगा। बात करें, अब आप बात ठीक करें है हदीस पर बात करें जी कि मेरा सवाल पहले नोट कर लें। जी। सवाल तवज्जो से सुनिएगा। हाँ जी पहला सवाल यह है कि क्या मिर्जा कादियानी जी मसीह इब्ने मरियम है। दूसरा सवाल है कि वो दमिश्क का ठीक है मशरकी मीनारे के करीब 2 जर्द चादरें पहन के 2 फरिश्तों के बाजुओं पर हाथ रख के उतरा और उसके सर से क्या पानी के कतरे टपक रहे थे। ये सारे सवाल चलें जी, बताइए जी। ठीक है जी। इसमें से ज़्यादा नहीं पता, थोड़ा सा पता है कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के जो बाल थे ना, वो बड़े सिल्की थे, घने बाल थे, कि उनके ऊपर अगर एक पानी का कतरा लगता तो ऐसे यानी कि वो नीचे गिरता था, यानी कि सिल्की बाल थे। तो ये तो उनके बाल है थे ऐसे के, दाढ़ी भी उनकी घनी थी, बाल सिल्की थे, ठीक है। और यानी कि वो सेम जो निशानियां बताई हैं हजरत ईसा की उनमें थी। बात कर लिया आपने तो बता दीजिएगा, जी मेरी बात कंप्लीट हो गई है। हाँ जी हाँ जी 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 कर दी बात कर। माइक म्यूट कर लें। सुन लिया साहिबान आप लोगों ने, ये है कादियानियत। ये थे वो लोग कि जिन्होंने हमारा दलाइल के जरिए मुंह बंद करना था। हाँ जी, दलाइल के जरिए जिन्होंने हमारा मुंह बंद करना था मुखालिफिन का, ये हैं वो लोग। माइक म्यूट रखें अनवर साहब ना, ऐसे नहीं, गलत बात। आपको पूरा पूरा मौका दिया हमने बोलने का, तो अब तो नहीं ना, ऐसे नहीं, बारी बारी बात करते हैं। ये हैं वो लोग, देख लिया आप लोगों ने। हाँ जी, अब मैं वो हवाला लगाया था सर्चिंग के ऊपर, वो कसम वाली जो मिर्ज़ा कादियानी ने बात की है वो भी जरा सुन ले। कहता है ये रूहानी खज़ाइन जिल्द 7 सफ़ा 192 के ऊपर कहता है वल कसमु यदुल्लु अला अन्नल खबरा महमूलुन अला ज़ाहिरी ला तवीला फीही वला इस्तिस्ना। वो कहता है कसम वाली जो हदीस होती है उसके अंदर कोई तवील नहीं होती, उसको अपने जाहिर के ऊपर महमूल किया जाएगा। चले जी, ये तो वो हवाला मैंने लगाया था सर्चिंग पे, तो अभी मेरे सामने आ गया तो मैंने बता दिया। अब देखें कि मिर्जा कादियानी ना तो वो इब्ने मरियम है, ना वो ईसा है, हालांकि उसका नाम उसके वालिदैन ने जो रखा था वो दसवंदी रखा था, जो बाद में सुंदी बन गया था। लेकिन मिर्जा कादियानी जब बड़ा हुआ तो उसने अपना नाम लोगों को बताया कि मेरा नाम है गुलाम अहमद। लेकिन जब वो मर जाता है तो इन कादियानियों ने उसको अहमद बना लिया, ये अहमद है। ये तो मिर्जा कादियानी के नाम के ऊपर थोड़ी सी बात मैंने की है। अब उसकी माँ जो है, भाई माइक म्यूट रखें यार, नहीं मुझे बात करने दे अभी, मेरी ऐसे नहीं, मेरी मुझे अभी बात करनी, ऐसे नहीं, गलत बात, मुझे माइक हो गई है ना, कोई बात नहीं, माइक म्यूट करें, मुझे बात कर कंप्लीट करने दे। गलत बात है, बात गलत है भैया। आपको जब मौका दिया गया, आपको पूरा पूरा मौका दिया गया, आपसे इजाजत लेके हम बोल रहे हैं। आप भी बोल लें, जितना मर्जी बोल लें, अपने वक्त के ऊपर बोलिएगा, हम आपको रोक के तो फिर बताइएगा। अच्छा जी सुने, फिर मिर्जा गुलाम कादियानी सफेद मीनारे के पास दमिश्क, मिर्जा कादियानी ने अपने कादियान को कहा कि ये दमिश्क है, और मशरकी मीनारे का ये सवाल मिर्जा कादियानी से हुआ था कि वो मशरकी मीनारा कौन सा है। चल तूने कादियान को तो दमिश्क कह दिए, लेकिन वो सफेद मीनारा कौन सा है। मिर्जा कादियानी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, यहां पे एक सफेद मीनारा बना दो, जिसका नाम उसने मीनारातुल मसीह रखा। मिर्जा कादियानी ने ऑर्डर कर दिया था, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर वो मीनारा बन ही नहीं सका। मिर्जा कादियानी के मरने के 10 साल बाद मीनारातुल मसीह बना है,
जो आपके झंडे के अंदर भी है, और ये जो कल्ट बी नाम की आईडी बैठी हुई है ये अजहर शाह साहब के साथ, तो इन्होंने ये जो लोगो लगाया हुआ है ना, वो मीनारा यहां पे आपको नजर आएगा। ये कादियानियों का ये लोगो है, ये गालबन ये भी बंदा कादियानी है कोई। तो ये वाला वो मीनारा है जो कि मिर्जे के मरने के 10 साल बाद बना है, चंदे इकट्ठे कर करके। हालांकि हदीस में था कि दमिश्क का मीनारा होगा, मशरकी मीनारा होगा, दमिश्क की जामे मस्जिद होगी, है वाज़ेह तरीन हदीस के अल्फाज हैं। तो वो मस्जिद तो आज भी मौजूद है, वो आज भी मौजूद है, उसका मशरकी मीनारा भी मौजूद है। हाँ जी, मैं ये सर्च करूं गूगल के ऊपर, एक मिनट, दमिश्क की जामे मस्जिद, ये मैं सर्च किया, ये लो आ गए, ये लो, ये ले, मैंने लिखा है अभी दमिश्क की जामे मस्जिद, तो ये आज भी वो मीनारा मौजूद है। यार ये देखें, ये देखें, ये मीनारा है, मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया है दमिश्क की जामे मस्जिद, ये है वो मीनारा, आज भी मौजूद है। ये देखें, है ये है वो मीनारा जिसके करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उतरना है, दो फरिश्तों के कंधों के ऊपर। किसी भी बात सुन लें ना, नहीं, मैं आपको मौका देता हूँ, मेरी बात खत्म होने लगी है, बस खत्म होने लगी है, खत्म होने लगी, बस थोड़ा सा और सुन लें आप, मेरी बात खत्म होने लगी। बात तो बहुत लंबी मैं कहता हूँ, मैं आपको मौका देता हूँ, आप मेरी बात थोड़ी सी सुन लें, बस थोड़ी सी सुन। आगे जी, दमिश्क के मशरकी मीनारे के 2 जर्द चादरें, मिर्जा कादियानी कहता है 2 जर्द चादरों से मुराद मेरी 2 बीमारियां हैं, एक मुझे मराकी दौरे पड़ते हैं पागलपनी के, और दूसरा दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत्र आता है, ये है मेरी 2 जर्द चादरें। ठीक है, लो जी, 2 फरिश्तों के बारे में मिर्जा कादियानी से सवाल हुआ कि ये 2 मसले तो तूने हल कर दिए हैं, तीसरा मसला वो 2 फरिश्ते कौन से हैं? तो वो कहता है 2 फरिश्ते मेरे हैं, मेरा दायां फरिश्ता है मौलवी अब्दुल हकीम, और दूसरा फरिश्ता है जनाब, मैं वो हवाला निकाल ही लूं, मुझे भी थोड़ा सा, एक तो है हकीम नूरुद्दीन, और दूसरा फरिश्ता उसने कहा था, एक मिनट, दूसरा फरिश्ता, क्योंकि बात बंदा ना कन्फर्म करे, जरा सोलिड किस्म की बात होनी चाहिए, ऐसे उसमें कोई बिल्कुल कमी कुताई नहीं होनी चाहिए। फरिश्ते ये आ गए। हाँ, इन दोनों में से ये बहस खूब हुआ करती थी कि हज़रत मसीह मऊद का दायां फरिश्ता कौन सा है और बायां कौन सा है। बाज़ कहते थे कि मौलवी अब्दुल करीम साहब, और बाज़ हज़रत उस्तादी अल मुकर्रम खलीफा अव्वल की निस्बत कहते थे कि वो दायां फरिश्ता है। ठीक है जी, तो ये है दायां और बायां फरिश्ता, समझ आई कि नहीं? तो एक फरिश्ता अब्दुल हकीम है, मौलवी अब्दुल हकीम, और दूसरा फरिश्ता है जनाब हकीम नूरुद्दीन। ठीक है, तो अच्छा, 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर सर रखे, वो हाथ रखे हुए उतरेंगे, ये कौन से फरिश्तों इनके वो हाथ रखे हुए उतरे हैं? वो तो उतरे हैं जनाब, वो जनाब माइक सिटी का गेट खुलता है और उसके अंदर जनाब उसका गेट खुलता है ऐसे, तो जनाब अंदर से वो जन्नत बीबी निकलती है, मिर्जा साहब की बहन, तो वो जब निकलती है तो उसका गेट खुलता है, फिर तो उसके गेट के अंदर मिर्जा साहब का सर फंसा होता है। मुफ्ती साहब, बात तो बहुत लंबी हो गई है भाई, हवाला तो मुझे बात कंप्लीट, आपने तो बात कंप्लीट तो कर लेने दें, बात तो मुझे कंप्लीट कर लेने दें। अब बात को किसी किनारे पे तो लगाऊं मैं, बात कंप्लीट नहीं ना हुई, मैंने हदीस रोकी हुई है। वो तो दो पट्टों के ऊपर हाथ रखे हुए निकले हैं, उतरे हैं, जन्नत बीबी के 2 पट्टों के ऊपर उनके हाथ थे, दायां हाथ दाएं पट के ऊपर, बायां हाथ बाएं पट के ऊपर,
हवाला चाहिए होगा तो मुझसे ले लीजिएगा, मैं हवाला दे दूंगा। मेरी बात कंप्लीट हुई, बात करें। हाँ जी, लिखाएं बताएं। जी जी बिल्कुल, हवाले देने के लिए तो पहले बताएं। बिल्कुल बिल्कुल हवाले देने के लिए बिल्कुल जी, हवाला तो हम जेब में रखते हैं, बात बाद में करते हैं। ये ले नोट करें। रूहानी खजाइन जिल्द 15 सफा 482 और 483। 482। अच्छा, रूहानी खजाइन जिल्द कौन सी है? 15 जिल्द 15 सफा 482। ठीक है जी ठीक है। तो आप पढ़ के दिखाएं क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर। जी पढ़ के, मुझे पता था आपने कहना है, क्योंकि आपने अपनी किताबें तो पढ़ी नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जी। अच्छा जी, मिर्जा साहब कहते हैं कि अच्छा उसके साथ एक लड़की पैदा होगी जो उससे पहले निकलेगी और वो उसके बाद निकलेगा, और उसका सर उस दुख्तर के पैरों से मिला हुआ होगा। यानी दुख्तर मामूली तरीक से पैदा होगी कि पहले सर निकलेगा और फिर पैर, और उसके पैरों के बाद बिला तवक्कुफ उस पिसर का सर निकलेगा, जैसा कि मेरी वलादत और मेरी तमाम हमशीरा की इस तरह ज़हूर में आई। ठीक है मेरे भाई, चले करें बात। जी करें बात। जी मैंने पहले बात करनी है कि आप पहले मूसा भाई को ऊपर लें। मूसा भाई आपसे बात करते हैं, जो आप पहले बता रहे थे ना। जब आप, मैं कह रहा हूं ना, आप थक जाएंगे ना। नहीं कैसे नहीं, आप मुफ्ती साहब मेरी, मैं थक गया हूं। आप देखिए, आप बाद में बोल रहे हैं। मैंने खामोशी से बात सुनी, मैंने खामोशी से बात सुनी। हाँ, बात ये है कि आप जैसे कह रहे थे कि मिर्ज़ा साहब ने कहा कि मेरे जो है जमात के वो दलाइल में मुंह बंद करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको कहता हूं कि आप मूसा भाई को ऊपर लें, आपको वो तसल्ली बख्श जवाब देंगे और आपके ऊपर सवाल करेंगे, और आपने भी यानी कि तमीज़ के दायरे में रहते हुए उनका जवाब देना है, और वो भी देंगे। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, मैं आपकी भी बात सुन लूंगा, जो आप दलाइल देंगे वो जो देंगे मैं वो भी सुन लूंगा। इससे बड़ी आसानी क्या होगी? ठीक है, अगर आप इसमें से कोई बंदा नीचे उतारे या मुझे नीचे उतार दें बेशक, तो मैं कमेंट में नीचे सुन रहा हूँ, लाइव आपकी सारी सुन रहा हूँ, तो आप मूसा भाई को, हाँ मूसा भाई आ गए हैं, अब आप मूसा भाई से सवाल करें। ठीक है, यही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के बारे में, हजरत ईसा और इमाम मेहदी का जो वजूद है, आप कहते हैं दो अलग अलग है, हम कहते हैं वो एक वजूद है। इस बारे में इनको नीचे उतार दें। गलत बात, ये गलत बात है। ये जिन्होंने भी उठाया इनको ये बिल्कुल गलत है। अजहर भाई ये नहीं क्यों नहीं है, नीचे कर दिया है, क्या बात नीचे डाल दिया। आप बात कंप्लीट कर लें फिर मैंने बोलना। मैंने बात कर ली, चले माइक म्यूट कर। जी मैंने बात कर ली, आप उनको क्यों उतार रहे हैं? डर रहे हैं आप उनसे? डरते हैं कि मैंने बात कर ली? अभी कोई नहीं बोलेगा। अजहर भाई जो भी बोल रहे हैं ना उसको नीचे उतार दे जाए। अजहर भाई जो भी बोल रहा है उसको नीचे उतार दें। ठीक है सादे मोहतरम भाई। अमर साहब बात सुने, आप बात मुकम्मल करें। आपके जब बात मुकम्मल हो जाएगी ना, फिर मूसा साहब को हम ले लेंगे, उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ रखना होगा। अजहर भाई ये मैं हैंडल कर लेता हूं। जी जबरदस्त हो गया है, बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर आप गलती पे होंगे, आप गलत बात कर रहे होंगे। मैं जैसे ही अपनी बात खत्म करूंगा, आपने मूसा भाई को ऊपर लेना है और अदब के दायरे में रहते हुए बात करनी है, कोई गुस्ताखी वगैरह नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि हमारा ये है कि अगर जहाँ पे गुस्ताखी होती है फिर उधर बात नहीं होती है, यानी कि दीन की बात नहीं होती उधर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। बताएं आप। अच्छा अजहर शाह जी माइक म्यूट करिएगा। अनवर साहब जी माइक म्यूट करिए। अच्छा ये अजहर भाई आप नए बंदों को क्यों उठा रहे हैं? सादे मोहतरम मैं नहीं उठा रहा, मैंने नीचे मैसेज भी किया है, सिस्टर को बोल रहा हूँ कि नए आदमी किसी को नहीं उठाना जब तक बात मुकम्मल ना हो। तो आप कोई नहीं आया अजहर भाई, एसके हैं बस, और ये अपना पुराने वो बोलेंगे नहीं कुछ भी। अच्छा मुझे नहीं पता था कि आपने कोई मॉडरेटर भी बनाए हैं। शाह जी ऐसे नहीं, ब्राडें ऐसे नहीं होती हैं शाह जी, कोई एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मेरी तो आदत का तो आपको पता ही है, बताना तो नहीं पड़ेगा।
कि मैं एक पूरे एक डिसिप्लिन के तहत मुकालमा करता हूँ। मैं शोर शराबा मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, और ऐसी जगह पे मैं टिकता ही नहीं हूँ, 2 मिनट नहीं टिकता, मैं खुद ही मतलब स्किप हो जाता हूँ। तो मुकालमा हो रहा है एक उसको चलने दें, उसूली तौर पे दूसरों 2 को भी उतार दें, बस 2 बंदे लगे हैं ना, बस ठीक है। अच्छा, अब मैं अनवर साहब की तरफ आता हूँ। अनवर साहब, गुजारा ये है मेरे भाई, पहले आप, मैं कह रहा हूं ना, जब आप बिल्कुल आप थक जाएंगे, आपको सांस चढ़ गई, अब आपसे बोला भी नहीं जा रहा, आपके पास कोई दलील नहीं, आपके पास कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं उसी वक्त मूसा साहब से बात शुरू कर दूंगा, लेकिन एक तरीके का थ्रू प्रॉपर चैनल चलेंगे ना हम। जी आप मूसा भाई को ऊपर लें, आप मूसा भाई को ऊपर ले लें, आपकी सारी बातें ठीक है, मूसा भाई को ले। तो ठीक है, आप के पास कोई जवाब नहीं है इस हदीस का, बोले आपके पास कोई जवाब नहीं है इस हदीस का? क्या कह रहे हैं आप? आपके पास इस हदीस का कोई जवाब नहीं है? मैंने आपको बताया कि आप मुफ्ती साहब, आप मेरी भी बात सुने ना, आप एक मुफ्ती हैं, आपसे अगर आपके बहुत इल्म हासिल करने लोग आते हैं तो आपसे ये मैंने हदीस ली, इस बारे में मैं आप सर्च कर लूंगा, और इंशाल्लाह आपको टाइम दिया हुआ है जो 1 हफ्ते का, फिर मैं आपसे यानी कि चाहे लाइव पे या फिर व्हाट्सएप पे राब्ता करके तो आपको बताऊंगा। जी, वो तो मिर्जा जूनियर जेलमी की वीडियो का टाइम दिया आपने। जी इसका वो तो मिर्जा जूनियर जेलमी की वीडियो डाली है आपने। मैंने पहले अली भाई से इधर उनसे एक हदीस का पूछा था, उसके बारे में फिर मैंने उनको जवाब भी दिया था कि इस हदीस का भी मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा ज़रूर, ठीक है। अब मुझे बेशक ऊपर ही रहने दें, मूसा भाई को आप लें, आप मूसा भाई से बात करें, मूसा भाई आपसे बात करेंगे। ऐसे नहीं किसी किनारे पे लगाए, ये पहले सुन जाइएगा। रूहानी खजाइन जिल्द 20 है, सफ़ा 409 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है कि खुदा ताला ने, माइक म्यूट करें ना, शोर आ रहा है, माइक म्यूट करें। खुदा ताला ने मुझे बार बार खबर दी है कि वो मुझे बहुत अजमत देगा और मेरी मोहब्बत दिलों में बैठाएगा और मेरे सिलसिला को तमाम जमीन में फैलाएगा और सब फिरकों पर मेरे फिरका को गालब करेगा और मेरे फिरका के लोग इस कदर इल्म में और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि वो अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। जबकि हम तो ये बात गलत होती हुई सबूत के साथ देख रहे हैं कि मिर्जा कादियानी के फिरके के जो लोग हैं वो जाहिल मुतलक है, उनको तो आती जाती कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं है। मिर्जे की बात तो ये सच्ची साबित नहीं हुई नहीं, आपने खुद मिर्जे कादियानी की बात को झूठा साबित कर दिया है। हमें मिर्जे कादियानी को कज़ाब कहने की भी जरूरत पेश नहीं आई, आपने खुद अपने अमल के जरिए मिर्जे कादियानी को कज़ाब साबित कर दिए। अगर आप मिर्जे कादियानी की इस बात को सच्चा साबित करना चाहते हैं तो आप दें जवाब मुझे, आपको क्यों जरूरत पेश आई, क्या उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, उसको लेके आओ, क्यों लेके आए भाई? मिर्जे कादियानी ने आपके बारे में अनवर साहब कहा था कि मेरे फिरके के लोग इस कदर इल्म और मार्फत में कमाल हासिल करेंगे कि अपनी सच्चाई के नूर और अपने दलाइल और निशानों की रूह से सबका मुंह बंद कर देंगे। तो आप तो दूसरों को लाकर मुंह बंद कर रहे हैं, जी फलां को ले आओ, फलां को ले आओ, फलां को ले आओ। मैं कह रहा हूं कि आप हार अपनी तस्लीम कर लें कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं अभी इनको उठा लेता हूं, उनसे बात कर लेते हैं, ये कौन सा मसला है भाई? तो लेकिन ये बात होती है कि असूलों के तहत मेरे भाई, आपसे जितने सवाल हमने किए आपको पता ही कोई नहीं, आप कहते हैं मैं वो देखूंगा तो सर्च करूंगा तो देखूंगा। फिर आपने हदीस क्यों पेश की थी जब आपकी सर्च ही नहीं थी एक चीज के ऊपर? हदीस तो आपने पेश की थी कि देखो जी वो 2 जर्द चादरें पहने हुए आएंगे, हदीस के अंदर आया है, तो बात तो वहां से चली है। जब आपकी सर्च ही नहीं थी, तहकीक नहीं थी, तो आपने हदीस क्यों पेश की? बताइए, दें इसका जवाब, बोलें, माइक ओपन करें। जी मुफ्ती साहब, बात ये है कि एक मुफ्ती है ना, उसके बराबर पे एक कम से कम मुरब्बी बैठना चाहिए, ठीक है ना। मुरब्बी, असल तो मुरब्बी जो है वो तो बहुत ऊपर की चीज़ है,
मुफ्ती के सामने कम से कम एक मुरब्बी का दर्जा यानी कि होना चाहिए, तो आप उससे बात कर सकते हैं। अगर आपने मनाजरा करना है तो कम से कम मुरब्बी के साथ कर सकते हैं, एक आम बंदे के साथ नहीं, ठीक है। मुसलमान